गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय। மேல ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறேன்னு இப்படி சூத புராணிகர் ஆரம்பிக்க வர அந்த கதை கேட்டு இருக்கிற அந்த சௌனகாதி மகரிஷிகள் திரும்ப ஒரு 3 கேள்விகள் கேட்குறா. அதான் இந்த 4வது அத்தியாயம் ஆரம்பம். சாக்ஷாத் பகவானுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய வியாசர் வியாசாய விஷ்ணு ரூபாயன்னு அவர் அவதாரம் பண்ணி 4 வேதங்களை பிரித்தார். அதுக்குன்னு உள்ள தன்னுடைய சிஷ்யர்களை கூப்பிட்டு படிக்க சொன்னார். அப்புறம் பிரம்மசூத்திரம் பண்ணினார். ஸ்ரீ மகாபாரதம்னு 1,00,000 ஸ்லோகம் இதிகாசம் பண்ணினார். ஸ்காந்தம் முதலிய புராணங்கள் இத்தனையும் பண்ண வியாசர் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் ஏன் பண்ணினார்? அப்புறம் பிரம்மானுபவத்தில் இருந்து பிரம்மனிஷ்டையில் இருந்து சுத்தின்னு இருக்கிற அந்த சுகாச்சாரியால் ஒரு க்ஷணம் கூட ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாராம். இப்படி பிரம்மானுபவத்தில் இருக்கிற அந்த சுகாச்சாரியால் தன்னுடைய அனுபவத்தை விட்டுட்டு ஏன் தன் அப்பா கிட்ட பாகவதத்தை அத்தியனம் பண்ணினார்? 3வது கேள்வி, பிராமணாலே தெய்வமாக பார்க்கக்கூடிய குடும்பத்தில் பிறந்து இப்பேற்பட்ட பரீட்சித்துக்கு ஏன் பிராமண சாபம் வந்தது அப்படின்ற இந்த 3 கேள்விகள் எதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும்னு கேட்ட உடனே மேலே அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்காக கதையை ஆரம்பிக்கிறார். துவாபர யுகம் கடைசியில் பராசரருக்கு வியாசர் அப்படின்ற ஒருத்தர் பிறக்கிறார். அவர் பிறந்து 4 வேதங்களை பிரித்து பிரம்மசூத்திரம் பண்ணி இப்படி எல்லா புராணங்களையும் பண்ணி இப்படி அவர் இருக்கும்போது அவருக்கு சாக்ஷாத் பிரம்மனிஷ்டரே புத்திரராக பிறக்கிறார். இப்படி இந்த சுகாச்சாரியால் பிறந்ததுக்கப்புறம் அவர் பிரம்மஜானியாக இருக்கிறதுனால சாதாரண குழந்தை போல இல்லை. ஆனாலும் இவருக்கு இருக்கிற இந்த புத்திராபிமானத்தினால அந்த சுகாச்சாரியால் கூப்பிட்டுன்னு போகிறார். அவர் பிரம்மைவரசம்னு போயின்னு இருக்கார். இப்படி போயின்னு இருக்கும்போது சில கதை அவர் பரிபவப்படுறார் தேவதைகளை வச்சு. அதனால இது என்னது, இது இத்தனை பண்ணியும் நாம் ஒரு அஜ்ஞானி போல போயின்னு இருக்கோமே, நம்ம மனசில் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கே, இது ஏதோ தெய்வ சங்கல்பம் போல இருக்குது, அப்படி ஏன் இப்படி நம்ம மனசில் வருத்தம் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இதை பற்றி யோஜனை பண்ணிட்டே தன் ஆசிரமத்தில் உட்காண்டுன்னு இருக்கார் சரஸ்வதி நதி தீரத்தில். இப்படி உட்காந்துன்னு இருக்கும்போது அங்கேருந்து ஒரு மகான் வரார். அவர் தான் நாரதர். நாரதரை பார்த்த உடனே அர்க்யபாத்திய ஆச்சமணி எல்லாம் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சு மேலே நாரதரை பார்த்து பேச போகிறார். இதான் இந்த 4வது அத்தியாயத்தினுடைய கதை. அத சதுர்த்தோऽध्यायः व्यासोवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बह्वृचः शौनको ब्रवीत्। शौनकोवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतां वरा कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रः गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुः न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेः मुनिना सह संवादः समभूत्तात
यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थे कुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूता प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्य अधिराट् श्रियम् नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं समीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीनः उदितेरविमण्डले परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मं व्यतिकरम् प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धधानान्निस्सत्वात् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद्दध्यौ हितममोघदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुस्सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैकः निष्णातो यजुषामुता अचर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुः दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः ययेतर्षयो वेदं स्वं स्वं यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैः तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन् तयेव वेदा दुर्मेधैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः नातिप्रसीदद्धृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित् धृतौ व्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युता तथा बिबत मे दैह्यः ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्माः न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तयेव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवं किलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणम्। गोविंद गोविंद। सद्गुरु विठलदास महाराज की जय।